A thing of beauty is a joy forever. As you know, this is the opening line of our poem, A Thing of Beauty. So let's make this poem a part of our series, Literary Devices. So let's get started with our poem, A Thing of Beauty by John Keats. In this poem, the poet tells us that any beautiful object is always treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy. The happiness that anything beautiful provides never fades into nothingness, but multiplies manifold whenever it returns to our mind. So let's check out the literary devices used in this beautiful poem. Literary devices that have been used in this poem are metaphor, inversion, alliteration, imagery, antithesis, anaphora, oxymoron, and symbolism. The definitions of these literary devices have been explained in my previous videos of this series, so please watch those videos to understand better the meaning of these literary devices. The link is given in the description box. Metaphor can be seen in these three phrases of this poem. The first phrase is bower quiet. What is bower? Bower refers to a pleasant shady part under trees in a garden. So the poet has compared a thing of beauty to a quiet bower. Just as a quiet bower gives peace to the mind, similarly, a thing of beauty fills our mind with joy. Next phrase is, are we wreathing a flowery band? यहाँ पर दो लिटरेरी डिवाइसेस आपको देखने को मिल रही हैं. एक तो इन्वर्शन है और दूसरी मेटाफर. इन्वर्शन क्या होता है? इन्वर्शन होता है कि जब किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में जो एक ऑर्डर होता है वर्ड्स का, नॉर्मल एक ऑर्डर जो वर्ड्स का होता है, उसको अगर हम रिवर्स कर दें, उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दें, तो वहाँ पर इन्वर्शन होता है. जैसे यहाँ पे बोला गया, आर वी रेथिंग, तो आर जनरली स्टार्टिंग में कब लगता है? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है, यहाँ पर सिंपल ही सेंटेंस चल रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर आर स्टार्टिंग में लगा दिया, तो यहाँ पर इन्वर्शन हो गया. मेटाफर किस तरीके से है वो देखिए. मेटाफर है इस तरीके से कि वो ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी ज़िंदगी की, वो हमें इस धरती से, इस नेचर से जोड़े रखती हैं. So it is like connecting to nature. So it is only because of beautiful things that we can bear to stay on this earth. There is so much pain and suffering in the world that no one would be willing to live here. But the objects of beauty are like a flowery band that keeps us bound to the earth. Third phrase is endless fountain of immortal drink. Here, the poet considers beautiful things as an endless fountain of immortal drink. He calls its drink immortal because these things of beauty can give us as much joy as angels derive from the immortal drink of heaven. So, beautiful objects of nature are forever, like a never-ending portion of a drink. इस फ्रेज को हम दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. This phrase refers to the deeds of great men and women that have made them a source of inspiration for all. तो यहाँ पर मेटाफर दो तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है. The next literary device that is used here is alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of the consonant sound in a line of a poem. So let's see. The first example is from first stanza. Sleep sweet. Sleep sweet में SS देखिए, यहाँ पे सा की साउंड आ रही है. नेक्स्ट इज नोबल नेचर्स, जो कि स्टेंजा सेकेंड से लिया गया है. नोबल नेचर्स में एन में देखिए ना की साउंड आई. नेक्स्ट बेंट टू बाइंड, बी बा की साउंड. नेक्स्ट सम शेप, SS में स की साउंड. एंड द लास्ट वन इज कूलिंग कॉवर्ड. कूलिंग कॉवर्ड में का की साउंड आ रही है. तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपके एलिट्रेशन के हैं. The next literary device that we find here is imagery. Imagery that appeals to our senses. So first example is cooling covert.
कूलिंग, ठंडा. कॉवर्ट इज एन एरिया ऑफ थिक लो बुशेस. तो क्लियर स्ट्रीम जो बहती है वो अपने लिए कूलिंग कॉवर्ट बना लेती है. और वो क्यों बनाती है? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉट सीजन. ओके, सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. स्प्रिंकलिंग, यहाँ वहाँ खिलना. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ और स्मॉल नंबर ऑफ मस्क होता है. मस्क रोज क्या होता है? अ टाइप ऑफ रोज विद लार्ज वाइट फ्लावर्स. और ब्लूम्स मान ली खिलना होता है. तो फॉरेस्ट के मिडिल में यहाँ वहाँ मस्क रोजेस खिले हुए हैं. बुशेज है वहाँ पर जो कि फुल ऑफ मस्क रोजेस हैं. तो यहाँ भी इमेजरी का यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शेडी बोन. शेडी बोन्स, ट्रीज जो होते हैं चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, और वो शेड देते हैं. और वो शेड किसी बून से कम नहीं होता. बून क्या होता है? वरदान से कम नहीं होता. तो अगर हम इस चीज़ को सोचें शेडी बून को, तो हमें ट्रीज ही दिखाई देंगे. तो यहाँ इमेजरी है. नेक्स्ट इज क्लियर रिल्स. क्लियर होता है, साफ होता है. रिल्स का मतलब होता है रिवर स्ट्रीम, जो धारा बहती है उसके लिए बोला जाता है क्लियर रिल्स. नेक्स्ट इज डैफोडिल्स इन ग्रीन वर्ल्ड. तो यहाँ पर डैफोडिल्स जो एक फ्लावर होते हैं उनकी ग्रोइंग प्रोसेस को दिखाया गया है कि देर आर द लवली डैफोडिल्स विद ऑल द ग्रीन वर्ल्ड इन विच दे लिव. तो हमें ऐसा विजुअल ऐसा लगता है कि हम खुद अपनी आंखों से डैफोडिल्स को देख रहे हों. Next example is pouring from the heavens brink. This example is from stanza 4. In this line, we can imagine as if God is providing us with best things. In other words, God Himself has created these beautiful things for us so that we can derive joy from them during our life on this earth. The next example is The grandeur of the dooms we have imagined for the mighty jet. ये आपकी स्टैंजा 4 से ली गई हैं. 2 लाइन्स हैं ये. तो इसमें the poet says that we imagine magnificent rewards by God on the day of judgment for those mighty men of the world who are now lying dead in their graves. कि हम इमेजिन करते हैं उन माइटी मैन के बारे में, उन वीर लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, जो अब नहीं है, कि भगवान जब जजमेंट का दिन आएगा तो भगवान उनको क्या रिवॉर्ड देता है. तो ये सब देखने के लिए भी मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं. तो ये इमेजरी के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है. द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज द यूज ऑफ सेम वर्ड इन 2 consecutive लाइन्स. कि जब लगातार 2 लाइन्स में अगर सेम वर्ड का यूज हो रहा है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है. एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, लिखा है ऑफ नोबल नेचर्स डैश 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 ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर द कंट्रीज. ये आपका स्टैंजा 2 से लिया गया है. आप लाइंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइंस जो हैं वो ऑफ से शुरू हो रही हैं. तो यहाँ पर एनाफोरा है. नेक्स्ट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस क्या होता है? कि जहाँ पर 2 अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाएं, जैसे ओल्ड एंड यंग, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों को एक साथ रख दिया गया है. तो ये एंटीथेसिस. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन. व्हाट इज ऑक्सीमोरन? Oxymoron is a figure of speech which uses terms that contradict each other. जिसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, mighty dead. What is mighty? Mighty are those warriors who have died bravely for a cause. Or it refers to inspiring personalities who once lived on this planet. तो mighty थे, शक्तिशाली थे. तो उन वॉरियर्स के बारे में बात हो रही है जो कि अब डेड हैं. शक्तिशाली भी थे लेकिन अब डेड हैं. तो ये दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट आइडियाज़ हैं, साथ रखे गए हैं. तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है. नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म हमें किस फ्रेज के थ्रू दिखाया गया है? देखिए, सिंपल शीप के थ्रू. सिंपल शीप रेफर्स टू मैनकाइंड एज क्राइस्ट इज कंसिडर्ड द शेपर्ड who leads human souls
out of the dark world of sense and temptations. कि जो ह्यूमन काइंड है, जो मैन काइंड है, इसको ऊपर वाला जो है जब इस दुनिया, जो पाप से भरी दुनिया है, जो लालच से भरी दुनिया है, उनसे जब हमें बाहर निकालता है तो ये भगवान हमें लीड ही करता है उस संसार से बाहर निकलने की, उस जो पापी दुनिया उससे बाहर निकलने की। तो यहाँ पे सिंपल शीप जो है वो मैन काइंड को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर सिम्बॉलिज्म है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिचन इन राइमिंग कपलेट्स एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज AA, BB, CC, GG. The poet has used the iambic pentameter in this poem. Hope you liked my video. So share it among your friends and relatives and keep watching and keep learning. And subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you.